Join hands in Namaste Mudra. Let us begin the chanting Shanti Path together. Inhale. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Keep your eyes closed. Be in the silence. Do not move immediately. Just observe the silence. Let the breath come to the normal pattern. And then gently rub your palm. Generate some heat. Cup your eyes. Cup your face. And spread this energy all your body parts. Bow down. Offer the gratitude to Mother Earth. And gently allow your eyelashes, eyelid and eyeball to open up. Take your neck to the front. So very good afternoon to all of you. So today we have last lesson, that is Navavidha Bhakti, traditional yoga. Now we are completing all your syllabus. Okay, so whoever missed my classes, try to cope up with the study by communicating with your friends, right? So आज हम क्या सीखेंगे? नवविध भक्ति. First, let us understand what is bhakti means and why we need to take this path and where the reference is all about, and what are those 9 ways to do this bhakti and achieve the ultimate goal. That is what? Ultimate goal is connecting to the higher power or attaining that moksha. Moksha prapti is our final goal, right? Ultimate freedom. But to do that, there are different pathways given in the yoga, right? And we have studied that, like Raja Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga and Bhakti Yoga. So Bhakti Yoga has been given topmost, path where anyone can just do the bhakti and achieve that ultimate state. Whereas Jnana Yoga, Karma Yoga and Raja Yoga has certain kind of, needed eligibility. Certain kind of eligibility is needed. कि सीखना है आपको, अगर ज्ञान योग तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा, गुरु के साथ बैठना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, राइट? राजयोग के लिए जैसे आचार्य पतंजलि ने हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब बातें बताई हुई है, राइट? फिर हमें कर्मयोग करना है तो हमें हमारे एक्शन में फाइन ट्यूनिंग लानी पड़ेगी, राइट? आप जो एक्शन करते हो उस एक्शन का रिजल्ट अच्छा लाने के लिए आपको पहले वो एक्शन कैसे लेनी है, क्या उसका पर्पस है, स्किल है, वो सब सीखना पड़ेगा. बट भक्ति में ऐसा नहीं है. इसके लिए भक्ति हैज कंसिडर एज अ टॉप मोस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू रीच टू द गॉड. ओके, एंड दैट्स वाई भगवद गीता में भी भक्ति योग को टॉप में रखा है, राइट? अभी आते हैं हम वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति. भक्ति मतलब क्या है? आप में से कोई बताएगा? डिवोशन. एनी अदर मीनिंग? श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, हाँ, आस्था, प्रेम, yes, love, faith, and so you need to first find out the meaning of bhakti, synonyms, उसको किस किस तरह से हम भक्ति कर सकते हैं. तो जब हम synonyms find out करते हैं तो उस हिसाब से हम अलग अलग टाइप में हम अपने आप को जांचने लगते हैं कि मुझ में ये गुण है क्या,
तो मैं ये भक्ति योग को फॉलो करने के लिए पात्र हूँ, क्योंकि आप में वो होना ज़रूरी है, प्रेम होना ज़रूरी है, श्रद्धा होनी ज़रूरी है, आस्था होनी ज़रूरी है। अगर वो आप में नहीं है तो आप कैसे भक्ति योग फॉलो करो, राइट? सो इट इज़ द एटीट्यूड present in self, and this attitude contains emotion. It's not only the devotion, it's a devotion along with certain emotions और भाव, आप में वो भाव होना चाहिए। एंड इसका रेफरेंस आप अगर देखोगे हमारे वैदिक स्क्रिप्चर में, मोस्टली origin of bhakti yoga is given in the Hindu scripture, but later on it is actually universal, it has the universal acceptance. Here in Veda we find the reference in श्वेताश्वर उपनिषद है, उसमें इसका रेफरेंस मिलता है। मतलब एक ही ये उपनिषद ऐसा है जिसमें भक्ति का रेफरेंस या नाम लिखा हुआ। सेकंड हमें मिलता है भगवद गीता में। भगवद गीता में आप देखो तो पूरा भगवद गीता ही मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स टॉकिंग अबाउट भक्ति। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द होल दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति योग, बट हमें ये देखना है कि ये हमारा जो टॉपिक है आज का, नारद भक्ति, नवविध भक्ति, ये क्यों नारद से रिलेटेड है? क्योंकि ये नारायण सूत्र में इसका रेफरेंस आया गया है। क्योंकि नारद मुनि क्या करते थे? नारायण नारायण करते करते सब जगह पे घूमते थे, राइट? उनको वो शाप मिला था कि आप एक जगह पे नहीं रुकने वाले, लेकिन उस शाप को भी नारद मुनि ने पॉजिटिवली लिया कि ये बहुत अच्छा शाप है मेरे लिए, क्योंकि मैं इस तरह से मैं सभी को मिल पाता हूँ और सभी के यहाँ पे क्या क्या चल रहा है ये मैं जान पाता हूँ। सो कभी कभी कुछ नेगेटिव बातें जो होती रहती है उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करके अपने मुक्ति के लिए उसको कैसे यूज़ करें, वो भी एक ज्ञान है, वो भी एक स्किल है। तो ये नारायण सूत्र में भक्ति योग का रेफरेंस है। और नवविध भक्ति मतलब 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन, हाउ यू कैन रीच टू योर गॉड। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो एक रेफरेंस आता है जहाँ पे दिया है कि देयर आर डिफरेंट वेज। इट्स मीन्स भक्ति मीन्स वी रिलेट विथ ओनली विद द गॉड। सो नाउ फॉर वन पर्सन गॉड कैन बी निर्गुण, मतलब जिसका कुछ गुण नहीं है, जिसका कुछ फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस गॉड। बट हम मानते हैं और मोस्टली हम वैसे ही, कहाँ भगवान कहाँ है, उसका फॉर्म क्या है। हर एक मूर्ति अलग अलग लोगों के लिए वो डेटी होगी। किसी को गणेश पे भक्ति होगी, किसी को शिव पे भक्ति होगी, किसी को साईं बाबा पे भक्ति होगी, राइट। तो ये क्या है, ये फॉर्म्स, ये हमने एक फॉर्म बना के फिर हम उसको डिवोशनल एटीट्यूड या वो श्रद्धा निर्माण करते। बट किसी का निर्गुण भक्ति भी हो सकता है, मतलब जिसका कुछ फॉर्म नहीं है, राइट। या किसी की भक्ति अपने गुरु पे हो सकती है। तो एक हुआ निर्गुण फॉर्म पे भक्ति करना, एक हुआ कि सगुण फॉर्म पे भक्ति होना, राइट। एंड एक फॉर्म क्या है कि गुरु पे भक्ति होना। या और एक फॉर्म हो सकता है कि हम अपने फ्रेंड्स को भी कभी कभी हम भक्त हो जाते हैं उनके, राइट। या रिलेटिव क्लोज, वेयर वी फील कनेक्टेड, दैट पर्सन बिकम योर भक्त, यू बिकम द भक्त ऑफ दैट पर्सन। हाँ, माय मदर फादर इज योर फर्स्ट गुरु हम कहते। तो जब मैंने गुरु कहा तो वहाँ पे आपका वो मदर फादर बोलो, आपके टीचर बोलो, वो सब कुछ इंक्लूड आ गया, राइट। सो एक व्यक्ति के लिए भक्त के रूप में या एक गॉड डीटी के रूप में अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन उस गॉड को या उस टीचर को आप किस तरह से, आप ऐसे पता चलेगा कि आप उनके भक्त हो, आपके किस एटीट्यूड से ऐसे फील होगा, राइट।
तो वो एटीट्यूड क्या होने चाहिए, वो किस वे से आप अपने गुरु को पूछ पाओगे या आपके भगवान को आप अपने आप को अर्पित कर पाओगे, वो फॉर्म मतलब अपने नवविध भक्ति, राइट। तो ऐसे 9 ways of bhakti which has been explained under the term of नवविध भक्ति, राइट। वो क्या 9 ways है, तो सूत्र आता है, ये सूत्र भगवत गीता में भी भगवत पुराण में है, प्लस ये सूत्र ऐसा कहा गया है कि प्रहलाद, जो हमने कहानी सुनी थी, प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद, जो काफी नारायण विष्णु का भक्त था, तो उन्होंने ये सूत्र उसमें पाया गया है, उन्होंने जहाँ लिखा है। तो ये सूत्र ऐसा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद-सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। अभी ये 9 चीजें बताई गई है सिर्फ 2 लाइन में, यही संस्कृत की ब्यूटी है। ऊपर की 4 लाइन आपको 4 चीजें बताती है और नीचे की लाइन आपको 5 चीजों को मेंशन किया है। तो इसी को हम आज समझेंगे, ठीक है। तो पहला आता है श्रवण। श्रवण, मैंने जब हमारा लेक्चर शुरू हुआ था एकदम फर्स्ट, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 ways टू लर्न, assimilate द नॉलेज। वो कौन से 3 ways बताए थे मैंने? श्रवण, मनन, निधिध्यासनम। 3 चीजें बताई थी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट। उसमें श्रवण वर्ड आया था, निधिध्यासनम, कि आप अगर सुनते हो, सपोज, हाँ नहीं, आप अगर मुझे सुन रहे हो अभी, जो आप लोग में से बहुत, आई रियली अप्रिशिएट सम ऑफ यू हु आर देयर फ्रॉम द फर्स्ट लेसन टिल टुडे, उनके रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल आए नहीं होंगे ऐसा नहीं, मैं आए होंगे, लेकिन उनको वो ध्यास लगा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मुझे क्या मिलेगा नॉलेज। मतलब उन्होंने वो सब्जेक्ट को इतना सुना, उन्होंने कॉन्टेम्पलेट किया और उनको अंदर ऐसे लगा कि मुझे सीखना है, वो ध्यास, नो, बीइंग इन दैट प्रोसेस, दैट इज निधि ध्यास। अभी श्रवण का मीनिंग क्या है, ये यहाँ पे श्रवण मतलब कि आपके जो भी जजमेंट जिसको सुन रहे हो, सपोज यू आर लिसनिंग टू मी टुडे अबाउट नवविध भक्ति, सम ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस नवविध भक्ति, अर्ली सुना रहेगा किसी ने, या बहुत जनों ने नहीं भी सुना रहेगा, फर्स्ट टाइम सुनते रहेंगे, लेकिन जिन्होंने सुना रहेगा उनके मन में कुछ उसके बारे में ज्ञान पहले से ही होगा। वो ज्ञान को उसी जगह पे रख के आप जब ओपन होके अनलर्न करके आप नए तरीके से आप अगर सुनने लगते हो, दैट वे इज श्रवण, अनकंडीशनल वे ऑफ लिसनिंग कंप्लीटली। एंड दिस listening about Navavidha Bhakti, Shravana is related to listening the glory of God. It is related to that form of the God where you are feeling connected. You feel connected, right? तो ये उस भगवान के बारे में सुनना, और आप उस सुनने में इतने मग्न हो जाते हो कि आपको एक समय ऐसा लगता है कि आपको भगवान मिल गया। इस तरह का सुनना, नहीं तो आजकल हम कैसे सुनते हैं, आप मुझे सुन तो रहे, मेरा आवाज तो कान में जा रहा है, लेकिन दूसरे इतने सारे थॉट्स है माइंड में, बहुत सारी दूसरी भी आवाजें हैं, साइलेंटली माइंड में चल रहा है, वो श्रवण में नहीं आता है। जहाँ पे एक जगह पे आप टीचर को दिखा तो रहे कि यू आर लिसनिंग टू मी, बट अदर साइड यू हैव लॉट ऑफ थॉट, दैट इज नॉट श्रवण। ओके, तो आप जब ये भक्ति करोगे तो वो जो आपका जो गॉड जिसको आप मानते हो,
उसको तो पता चलेगा, भले मुझे नहीं पता चलेगा एज ए टीचर, बिकॉज आई हैवंट रीच टू दैट लेवल, बट वो जो गॉड है आपका, उसको तो पता चलेगा ये जो भक्त है वो कैसा है, सिर्फ काम के लिए आता है या काम के लिए मेरे मंदिर में आके सुनता है जो भी बातें चल रही है ना, जब काम हो जाए तो गायब, आता ही नहीं है राइट, तो वो श्रवण नहीं है, ठीक है। सेकंड आता है कीर्तन। आपने सुना रहेगा कि कीर्तन बहुत जगह पे मंदिर में करते हैं, राइट, महाराष्ट्र में तो कितने कीर्तनकार है, राइट। श्रवण का एक सत्संग हम ले श्रवण मतलब वहाँ पे सत्संग जो होते हैं, अलग अलग बाबा लोग आजकल करते हैं, आई डोंट नो हाउ मच दे आर एनलाइटेंड, सो यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ टुडेज बाबाज, यू नो। तो आपको पहले अपने आप को भी उतना क्लियर करना पड़ेगा कि आप किसी गलत रास्ते पे या गलत बाबा को या गलत गुरु को यू नो अर्पण ना करें, सरेंडर ना करें, ठीक है। तो उसके लिए भी आपकी श्रद्धा और आपका उतना पावर होना चाहिए कि राइट जगह पे राइट गुरु से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अभी बात आती है कीर्तन की। कीर्तन मतलब क्या कि प्रेइंग, जैसे हम अभी क्लास शुरू करते समय हमेशा हम चैंटिंग करते हैं ना, chanting the name of the God is what? Kirtana. And chanting with the emotion of love. मतलब जो कीर्तनकार होते हैं उनको देखो पूरा मतलब एक पूरे उसमें रहते, लय में रहते हैं, वो अलग ही दुनिया में चले जाते है ना। यू कैन सी द तुकाराम महाराज, राइट, हाँ, तो वो एकदम मतलब उनमें वो भगवान के रूप में वो आ जाते हैं या क्या होता है, नो आइडिया, ऐसा होता है, ओके। तो भगवत गीता में लॉर्ड कृष्ण लिखते हैं 9वें अध्याय में, आई गेस, कि मुझे जो पूछता है, मुझे जो याद करता है, वो जो भक्त है वो मुझे एक छोटी चीज में जैसे पत्ते, फ्लावर या कुछ प्रसाद या कुछ भी नहीं, सिर्फ श्रद्धा करे तो भी मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है, मतलब इतना हमारे इसमें वननेस है। सो भक्ति मार्ग से यू विल लिटरली बिकम यू नो टू दैट हायर एंटिटी, दैट मच पावर दिस पर्टिकुलर पाथ और द वेज हैज। इसके लिए कीर्तन, तो कीर्तन के लिए आपको पहले श्रद्धा, नहीं तो चल रहा है ये आजकल की यंग जनरेशन को अच्छा नहीं लगता है ये सब ना, कीर्तन चलता है, क्या आवाज है, डांस, भांगड़ा, डिस्को डांस, वो सब अच्छा लगेगा, पॉप है ना, वो अच्छा लगेगा। हाँ, कहाँ कितने पैसे खर्च करते हैं ऐसे सब पब में जाके डांस झूमने के लिए, बट वही टाइम आप ये डिवोट नहीं करेंगे कि मंदिर में जाके एक शांत तरीके से ऐसे कोई व्यक्ति अगर भगवान की कीर्ति सुना रहा है तो उसको सुनो। इसके लिए ये डिफरेंस है। हमें अभी ये पूरा जो हमारा जो संस्कृति है भारत का, कीर्तनकार है उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनको उनके पास जाना चाहिए, सुनना चाहिए। आजकल बेचारे कीर्तनकार की कुछ अर्निंग नहीं हो रही है क्योंकि पूरा समाज है वो वेस्टर्नाइज हो गया है और वेस्टर्न लोग यहाँ पे आके कीर्तन करते हैं माला विला डाल के, यू नो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम का एग्जाम्पल अपने भक्त प्रहलाद, उन्होंने जो विष्णु का स्मरण किया तो नरसिंह अवतार में विष्णु आ गए जब उनको जरूरत थी, है ना, क्योंकि उनके पिताजी हिरण्यकशिपु इज लाइक अ डिमन, राइट, and being a small child, then also he is able to fight with the father and this demon quality, just remembering the Lord Vishnu. तो आपके जो भी प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं ना हमारे लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम को लेके चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कितने सारे पिल्स खाते रहते हैं हम लोग। वो पिल्स खाने के बदले जस्ट रिमेंबर द गॉड एंड योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। डेवलप द एटीट्यूड ऑफ पेशेंस,
and gratitude, positivity, and understand the message of God, that if something is not happening, there is some reason, and accept it fully. वही आपके हाथ में है, नहीं तो फिर आप रोगे, सर पटकाओगे, कुछ भी करोगे तो भी कुछ होने वाला है नहीं। रिमेंबर, जो होना है वही होगा, उल्टा आप अपने आप को दुख दोगे। तो अगर आपको दुख से दूर होना है तो ये जो फॉर्म्स है भक्ति के वो समझना जरूरी। फिर आता है, जैसे ही अभी आप याद कैसे रखोगे ये 9 पाठ, एक जगह पे हमारा शुरू में 2 हो गए, श्रवण एंड कीर्तन। अभी विष्णु का स्मरण किया, तो विष्णु की वाइफ कौन? लक्ष्मी कहाँ पे होती है? चरण में, विष्णु के चरणों में। तो नेक्स्ट क्या आएगा? पाद-सेवना। याद रहेगा ना? हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस आइडियाज, हाउ यू कैन रिमेंबर दिस सो दैट यू कैन राइट इन द एग्जाम। कि मुझे आगे का याद ही नहीं आ रहा है क्या है। लॉर्ड विष्णु आया तो लॉर्ड विष्णु की वाइफ माता लक्ष्मी, वो कहाँ है? चरणों में उनके। तो पाद-सेवनम। तो ये एक क्या है? फॉर्म ऑफ डिवोशन। आप देखो, नई दुल्हन घर में आती है तो सासू माँ को पानी डालना पड़ता है उसके पैरों पे, राइट? या अभी हम लोग पंढरपुर की बात कर रहे थे, जो पादुका, वो भी अगर हमें दिखे बस हो गया, वहाँ पे मंदिर में जाके पूरा तो नहीं दिखा तो भी पैर अगर दिखे भगवान के तो भी काफ़ी है, बिकॉज पैरों में ही सब कुछ है। जब ये युद्ध हो रहा था महाभारत का, तब दुर्योधन एंड अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए थे कि आप हमें हेल्प करो कि युद्ध में आप हमारे साथ में रहोगे क्या, उसके लिए। तो कृष्ण ने ऑप्शन रखा, तो दुर्योधन बैठा था कहाँ? सर के पास, और अर्जुन कहाँ बैठा था? पैरों के पास। एंड दुर्योधन ने मांगा, मुझे वो 100 सैनिकों की या हजारों सैनिक जो थे वो मुझे चाहिए युद्ध के लिए, आपके सैनिक चाहिए मुझे। बट अर्जुन ने कहा मुझे आप भी मिलो, आप तो भी काफी है। एंड पैरों के यहाँ पे बैठे थे, मतलब ये कि इसीलिए हम आजकल इवन हम गॉड की पादुका को बहुत ज्यादा महत्व है हर जगह पे देखो। तो ये क्या सिखाता है कि हमें पाद-सेवनम, यहाँ पे सब कुछ है। आप अगर सिर्फ श्रद्धा से किसी को पैर पढ़ते हो, झुकते हो, दिस विल टीच यू हाउ टू बाउ डाउन। हस्तपादासन आसन। आजकल तो झुकना मना है, कोई झुकता नहीं है, बट ये श्रद्धा या भक्ति मार्ग के लिए आपको झुकना पड़ेगा। लेकिन कहाँ पे झुक रहे हो और कौन है वो व्यक्ति, वो मैटर करता है, ठीक है। तो पाद-सेवनम। फिर आता है हमारा अर्चनम। अर्चना मतलब क्या? ऑफरिंग, एटीट्यूड ऑफ गिविंग, एटीट्यूड ऑफ गिविंग, अर्चना। तो ये जो एटीट्यूड है कि अर्चित करना, या भगवान को हम लेके जाते हैं फूल, फल, अगरबत्ती, तेल, राइट? ये सब कब लेके जाते हैं? आपका जब स्वार्थ है। अभी मेरा स्वार्थ है, मेरा वीज़ा आ जाए, अभी तक आया नहीं, भगवान प्लीज़, नहीं तो मेरा पैसा डूब जाएगा, तब मैं जाऊंगी भगवान के मंदिर में, राइट? नहीं तो हम जाते ही नहीं है। कहाँ भगवान की याद आती है? अरे मैं तो एकदम मस्त चल रहा है, क्यों जाना है? फिर जाके मैं 50, 51, 101 जो भी देना है मुझे क्यों 80,000 टिकट का बचाने के लिए हम थोड़ा सा कुछ क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणा नहीं होता
ये राइट वर्ड है। ब्राइब, ब्राइब। वो कुछ श्रद्धा विद्या वो कुछ नहीं होता, आप लोगों ने जो बोला वो घूस देते हैं हम, वो नहीं अर्चना। अर्चना इज दैट यू हैव दैट unconditional offering. You don't want anything back. You have that emotion towards the God, towards the deity. It is a relation between the deity and devotee. And it is happening, the exchange of that love and kindness. Okay? तो आप क्या दोगे भगवान को? आप थोड़ी भगवान से बड़े, आप क्या दोगे भगवान को? कुछ दे सकते हैं क्या? नहीं. It is just our emotion, our श्रद्धा behind that. That's why we take that flowers and इसीलिए वो लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं कि आप कुछ भी दे दो, मुझे पत्ते दे दो, फूल दे दो, फल दे दो या कुछ भी ना दो, लेकिन आप अगर मुझे प्यार करते हो, आप अगर मुझे डिवोशनली कुछ देना चाहते हो तो मैं स्वीकार करता हूँ. I will accept everything whatever you want to give to me with love and kindness. प्यार से जो भी दोगे वो मैं ले लूँगा. शबरी ने, हाँ, राम एंड शबरी की वो जो कहानी है ना, वो भी याद करती थी राइट भगवान को. राम की भक्त थी, तो वो जो बेर थे वो झूठे बेर थे राइट, टेस्ट करके, मेरे भगवान को खट्टे बेर नहीं चाहिए, तो उसका जो भाव था वो बेर खाने का, वो क्या था कि मीठा बेर ही मेरे भगवान को चाहिए, वो भाव था. इसके लिए झूठा बेर भी चलेगा. बड़े प्यार से राम ने वो बेर खाए. फिर आता है हमारा वंदनम, एक सिंपल सा थैंक यू. हम जब वंदन करते किसी को, ये वंदन ही हुआ ना, तो हम क्या ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलना चाहते. तो अगर चीजें अच्छी होने लगी, खुशी खुशी में भी गॉड के पास जाना चाहिए, ना कि दुख में ही गॉड के पास जाओ कि कुछ अच्छा हुआ. जैसे हम पास हो गए तो जाते हैं पेड़े रखने के लिए, अभी 10th स्टैंडर्ड या राइट, तो हम जाते हैं, तो खुशी में भी आपको वो थैंकफुल एटीट्यूड में आपको ऑफर करना पड़ेगा. तो वो वंदन कहा जाता है कि आपको उसका अंदर से आपको वो एक्नॉलेज कर रहे, वो जो हायर पावर आपको हेल्प कर रही है सक्सेस के लिए, तो आप ये ऑफर करके, वंदन करके आप क्या बता रहे हो गॉड को कि थैंक यू गॉड, यू आर विथ मी, दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल. नहीं तो हम क्या करते हैं, हम सक्सेसफुल, ये तो मेरी वजह से मैं पास हुआ, मैंने मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है ना, गॉड तो नहीं आया था लिखने के लिए पेपर, मैंने लिखा है, मैं क्यों गॉड के पास जाऊँ. हाँ, तो इसमें भी आप जब ये भी आपका यश भी आप जब ऑफर करते हो, तो ऊपर वाला और आपको सक्सेस, आपको क्या एक ही सक्सेस के ऊपर रुकना है क्या, तो आप ऐसे करो. आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ते जाना है और अच्छे अच्छे काम करने हैं, तो आपको वंदन का एटीट्यूड, वंदन वाली भक्ति आपको हमेशा साथ में रखनी पड़ेगी. ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड. फिर आता है दास्य. दास्य मतलब सेवा भाव. आजकल कौन सेवा करता है? यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि चलो मेरा ये काम कर लो बच्चों, मैडम मेरे पास टाइम नहीं है, मैडम ऐसे हो गया. इट्स लाइक अ दास्य, मतलब आपकी सर्विस, एटीट्यूड ऑफ सर्विस. आप अगर ये पूजा कर रहे हो या किसी को मान रहे हो, तो आपका वो सर्विस, सेवा भाव मन में होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि मुझे करना पड़ रहा है काम, इसके लिए मैं कर रही हूँ, या कि मेरा टीचर के पास काम है इसके लिए मुझे टीचर का काम करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है. आपको सच में अंदर से श्रद्धा, ऐसा लगता है, अंदर से लगता है कि मैं इनके साथ रहूं या इनके लिए कुछ काम करूं, वो सेवा है जिसमें आप रिटर्न कुछ नहीं चाहते हो. एंड बिलीव मी, जब आप ऐसे काम करते हो वॉलंटियर, तो वो जो सेवा भाव है, जो आपको उस सेवा भाव से आपको आगे जाके बहुत फायदा होगा. मैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी किया है सेवा भाव, और तभी मुझे ये भी पता नहीं था ये सेवा है. मैं जब मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे इसमें सीखने को मिल रहा है,
तो मैं करती जा रही, मैं मुझे कुछ फाइनेंशियली बेनिफिट ज़ीरो, बट apart from financial benefit I receive what that I cannot count in the bracket of finance. वो आपको मिलेगा जो आपको लाइफ टाइम में आपको आपकी गाड़ी ऐसी ऊपर चली जाएगी वो सेवा भाव से। तो सेवा भाव बहुत श्रेष्ठ भाव है। हाँ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, इफ यू डू सम वर्क with the passion, with the love and with that devotion, then you will understand the gift of that work which you did. तो आप में वो दास्य भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। बहुत सारे योगा इंस्टीट्यूट में ये भाव सिखाया जाता है अलग अलग माध्यम से। स्टूडेंट सीखते हैं उस वक्त वॉलेंटियर बिना पैसे। मैंने डील किया है बहुत सारे, पास हुए मतलब ऐसे योगा टीचर को 200 घंटे का हुआ नहीं कोर्स की, बाद में आते हैं जॉब के लिए और बोलते हैं कि हमें पेमेंट कितना मिलेगा मैडम। तब मैं थोड़ा चुप हो जाती हूँ क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा किसी को भी नहीं पूछा मुझे पेमेंट कितना मिलेगा काम के लिए अगर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। अभी आप बोलेंगे ये तो फिर ऐसे कैसे, हमें कमाना भी है ना, घर भी चलाना है, तो पेमेंट का नहीं पूछेंगे तो कैसे। आप पेमेंट के लायक तो बनो, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, लोग ऐसे देंगे आपको। और कई जगह पे कम पेमेंट में नौकरी मिलती है तो भी ठीक है, लेकिन अनुभव के लिए तो करो। इसके लिए आजकल कितने सारे जो टीचर है बोलते हैं कि मैडम आपके एकेडमी में हमें वॉलेंटियर भी मिलेगा ना, वॉलेंटियर आपके अंडर सीखने को, तो भी हम तैयार है। लेकिन जब काम करने लगते हैं तो कुछ दिन करेंगे, भाग जाएंगे, नहीं मैडम इधर गए उधर टाइम नहीं, फिर क्या फायदा है ना। तो आपका वो कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, देन यू विल नॉट गो एनीवेयर। फिर वो समझ में आ जाता है कि ये बंदा कहाँ तक पहुँचेगा आगे, और किसके लिए आप वॉलेंटियरशिप का वो नाटक कर रहे थे, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा अपने से क्लियर रहना, डोंट बी wear that mask of goodness on you and start showing to others. It's internal, everything is internal. Or I'm so fortunate that by birth or whatever way this is there in me. I cannot wear that artificial mask. जो है वो है, गुस्सा आता है तो गुस्से से, वो प्यार आता है तो प्यार से, डिवोशन है तो डिवोशन। भगवान पे भी हम गुस्सा कर सकते हैं, भगवान ने अलाउ किया है, इसके लिए सब जाके नहीं क्या वो मूवी में दिखाते ही भगवान तुमने ऐसा क्यों एनीवे। तो नेक्स्ट इज साक्ष्य भाव। दास्य भाव का हमने उदाहरण शबरी का पहले ही लिया, हनुमान का, लॉर्ड हनुमान, राम। अभी लॉर्ड हनुमान क्या कम ताकत वाले थे, लेकिन फिर भी वो दासी भाव से राम को पूछते थे, है ना। तो हमारे पास जैसे ही ताकत आ जाती कि हम बड़े, है ना, मैं सबसे बड़ा, ये भाव जो आ जाता है ना वही डूब लेता है ना? कोई किसी से बड़ा नहीं। एक दूसरे को अगर आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, कभी ना कभी वो बगावत हो ही जाएगी और कभी ना कभी आपके विरोध में जाएंगे। तो इसके लिए बेटर है यू रिस्पेक्ट ईच अदर, यू एक्नॉलेज द वर्क and you have that attitude of Sakhya also. ऐसा नहीं कोई मेरा दास है तो उसको मैं दासी के रूप में ही ट्रीट करती रहूं, सर्वेंट के जैसे ही ट्रीट करती रहूं, ऐसा भी नहीं है ना। नहीं तो नौकर की तरह आप ट्रीट करने लगे, वो नौकर भी दिखाएगा फिर उसका एटीट्यूड एक दिन। तो ये दोनों तरफ से एक्सचेंज होता है। मतलब जब आप फॉर्म वाले गॉड या किसी व्यक्ति को, पर्सन को आप अगर गॉड मानते हो या भक्ति करते हो, तो आप याद रखना कि ये वो गॉड नहीं है जो कुछ नहीं, तो ये भी एक इंसान है। तो इंसान तो बदलते रहते हैं, तो इसके लिए आपको वो बहुत सोच समझ के आपको किसी व्यक्ति पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और वो श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि वो कोई भी आए टूटेगी नहीं वो श्रद्धा।
एंड उसके लिए आपको फ्रेंडलीनेस एटीट्यूड होना चाहिए, जो हमारा नेक्स्ट भाव है साख्य भाव, जो अर्जुन एंड कृष्ण का था, साख्य भाव था ना वो, भले हाँ सखा। तो ये जो साख्य भाव है ये बहुत कुछ आपको स्कोप देता है, मतलब यू कैन बिकम वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ देम, यू कैन नॉट बिकम वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ योर गुरु और यू नो द दासी। अगर आप दास्य भाव से जा रहे हैं तो वहाँ पे आप रो सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन गले नहीं मिल सकते। साख्य में क्या गले मिल सकते हो, गले मिल के आप इमोशन शेयर कर सकते। दास्य में आपको वंदन करके वो मिलेगा। तो अलग अलग फॉर्म है, मतलब आप किस तरह से आप कनेक्टेड हो किसी डीटी से या किसी व्यक्ति से जिसको आप पूछते हो, वो फॉर्म है। ठीक है, कृष्ण सुदामा, कृष्ण के तो कितने सारे, मतलब वो तो गोपियों के साथ भी साख्य भाव है ना, राधा के साथ साख्य भाव है, राइट। तो ये भक्ति है, राधा की भक्ति है टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, सखा, राइट। एंड इन टुडेज डे वी कैन कंसिडर एज अ पार्टनर, हमारा पार्टनर जो है वो साख्य भाव, आप डिवोशन तो है ही ना एक दूसरे की तरफ, राइट। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ये आपकी सखी है, वो जो भाव है आपके मन में वो सखा वाला भाव है, फ्रेंडलीनेस वाला भाव है, राइट। तो ये सब हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि आगे बढ़े, दुख दर्द में हमें सहारा मिल जाता है। एंड लास्ट इज आत्मनिवेदनम। व्हाट इज आत्मा? आत्मा में सोल, निवेदन, निवेदन सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, टोटल सरेंडर, आत्मनिवेदन, टोटल सरेंडर। हाँ, तो सुप्रीम मतलब जो भी है मेरा सब कुछ तेरा, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा नहीं है नहीं, मेरा है वो तेरा है। जो एक उदाहरण जो है वो वामन और महाबली राजा, वामन और महाबली राजा की कहानी है, अगर आपने सुनी रहेगी कि बलि राजा एक बहुत मतलब सब कुछ था, सभी लोग उसके अंडर थे, राइट, सब कुछ पावर था। तो लॉर्ड विष्णु वामन के रूप में आते, राइट, छोटे बच्चे, तो 3 पाँव रख के जो है, और जब वो पूरा वो जगह ये हो जाता है तो अभी एक के लिए तो जगह ही नहीं, तो वो बोलते कि मेरे सर पे रखो, मेरे सर पे पावर, टोटल सरेंडर, लेके जाओ सब, डर नहीं मुझे। अभी आजकल हम तैयार है क्या छोटी सी बात भी देने दे सरेंडर करने को, नहीं छुपा के रखो, है ना। तो ये टोटल क्या सिंपल छोटा सा सरेंडर एटीट्यूड भी आ जाए तो बहुत हो गया। हाँ क्या? नोट शेयर करने को भी 2-3 हफ्ता लगा। नोट शेयरिंग क्यों लगता है? क्योंकि पढ़ाई नहीं की ना, अभी नोट है, अभी फिर गुस्सा आएगा जब नोट नहीं देंगे। पढ़ा है वो नहीं पढ़, मैं लेक्चर हो गया, उसकी नहीं गया। देखो अभी एग्जाम के वक्त ये सब याद आएगा। अभी ये सब जो हमने सीखा है, ट्रेडिशनल योग की फिलॉसफी झाड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that how you follow all those forms of bhakti or devotion to achieve that ultimate blissful state of existence. हमारा जो existence है यहाँ पे, हम किसके लिए आए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हमें पर्पस पहले समझना, और उस पर्पस के लिए मुझे कौन सा पाथ नज़दीक का लगता है या कनेक्टेड लगता है। किसी को नहीं अच्छा लगेगा किसी के पैर पड़े, राइट। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि दूसरों के पैर पड़े। गले लगने का एक आधा ठीक है, चलो लग जाते हैं,
तो इसीलिए हमें ये जो पूरा योग जो है वो हमें यही सिखाता है कि हमारे एटीट्यूड को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हमें नॉलेज लेना है, योग सीखना है, दूसरों को बदलने के लिए नहीं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। आप योग करके किसी और को बदल ही नहीं सकते हो। आप अपने आप को बदलो तो क्या होगा? हाँ, ये सीक्रेट है। आप बदलेंगे तो सब पूरी दुनिया धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देगी आपको। आप जो चाहते हो वो होते हुए दिखाई देगा आपको, लेकिन ये तभी दिखेगा जब आप बदलोगे। So the whole work you need to do is internal, and this whole knowledge of traditional yoga which we have learnt from day one till today is that हमने इसमें काफ़ी सारे उदाहरण लिए। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण लिया हमने, बुद्ध का उदाहरण लिया हमने, हाँ, महावीरा का उदाहरण लिया। इन सब ने क्या किया है? डिवोशन। स्वामी विवेकानंद ने पूरा कौन गुरु थे? परमहंस, स्वामी परमहंस, डिवोशन, राइट। स्वामी परमहंस किसको पूछते थे? वो भी भक्ति मार्ग फॉलो करते। काली, गॉडेस काली को कितना वो पूरा पागल थे, मतलब लोग उनको पागल भी कहा गया उस समय किसी लोगों ने। आज भी अगर कुछ पढ़ते हैं या कभी ऐसे तो बोलते हैं आज भी लोग, जिनको वो समझ में नहीं आता वो क्या भाव है। रामदास स्वामी की भक्ति जो हमने दासबोध में भी बताया गया है कि रामदास स्वामी ऐसे व्यक्ति थे कि उनको डायरेक्ट राम उनको हेल्प के लिए आए, उनके भक्ति देख। तो हमने महाराष्ट्र में बहुत जगह पे हमने वो मनाचे श्लोक, जो मैडम ने भी मेंशन किया था लेक्चर में, मनाचे श्लोक हमने पढ़ा है, राइट। आज कितने जन को याद है वो? मना सज्जना छोटंसं होतं ते आहे। हा, मग तेच ना, पण आता इथून पुढे तुम्ही तुमच्या मुलांना दिलं का? मिळतच माहित पण नाही। पण ते कसं माहिती होणार? जेव्हा आपण ते कॅरी करणार। तुम्ही कॅरी केलंय का? तो पहिल्यांदा आपण ते आणलं पाहिजे ना आपल्या ह्याच्यामध्ये, आपण ठेवायचं आपल्याला जे फायदे झालेत सगळ्या गोष्टी, हा मग ते अनुकरण होणार। जे पुस्तकं आता जे आपण म्हणतोय की मी तुम्हाला आज पण विचारलेलं पुस्तक आहे, हे पुस्तक these are going to be later on you will understand the value of this book, नहीं तो ये वैनिश हो रहे, चला जा रहा है नॉलेज। लोगों ने क्यों बुक लिखना शुरू किया? पहले तो श्रवण, सिर्फ श्रवण से नॉलेज एक्सचेंज होता था, बाद में ये लिखित स्वरूप में नॉलेज ट्रांसफर होने लगा। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू अंडरस्टैंड अवर एंशियंट स्क्रिप्चर एंड द संस्कृति कल्चर। और हम ये बुक से परे होते जा रहे हैं, हम सब कुछ टेक्निकल बनाते जा रहे हैं। मैंने बहुत जगह पे देखा कि जहाँ पे जब ज़रूरत होती है टेक्निकल सिस्टम की, वो कभी काम ही नहीं करती। प्रेजेंटेशन अगर कहीं देना है तो वो चालू ही नहीं होता, वीडियो ऑडियो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है वो इवेंट में, यू नो। So it depends on that the speaker who has the knowledge in this computer and how you can manage the whole crowd. So the human computer is the best computer. You can take the help of technology. At the same time, do not take everything as a technology. It is the man-made instrument, device. Right? तो इसके लिए अपने पूरे ये इंस्ट्रूमेंट पे, ये जो पूरा दिया है डिवाइस, इसके ऊपर काम करो। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन सोल, एंड दैट इज व्हाट दिस होल भक्ति इज ऑल अबाउट। राइट? With this we will conclude
today's lesson. If any question you can ask.